السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہندوستان میں یوم آرمی منایا جا رہا ہے۔ اس سال ہندوستان کا 73واں آرمی ڈے ہے۔ اس موقع پر صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد سابق فوجیوں نے ہندوستانی فوج کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شہریوں کی طرف سے فوجیوں کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میں تمام شہریوں کی طرف سے بھارتی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری فوج نے ہمیشہ فخر کے ساتھ ملک کا سر بلند کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے جمعے کی صبح ایک ٹویٹ میں لکھا، ماں بھارتیہ کی دفاع میں یوم آرمی کے موقع پر ملک کے طاقتور فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو دلی مبارکباد۔ ہماری فوج مضبوط، بہادر اور پرعزم ہے، جس نے ہمیشہ سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ملک کے دارالحکومت دہلی سمیت پورے شمالی ہندوستان میں شدید سردی اور کوہرے کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ سردی کی وجہ سے ہر طرف کوہر ہی کوہر ہے۔ میدانی علاقوں میں برف برداری سے سردی کے باوجود شمالی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ رک گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں صفدرجنگ میں آج صبح جمعے کی صبح 5:30 بجے درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اتنی سردی میں بھی کوہرے کے درمیان آرمی ڈے منایا گیا ہے۔ دہلی میں CDS جنرل بپن راوت، آرمی چیف جنرل MM نروانے، IAF کے چیف مارشل KS بھدورا اور نیوی کے چیف ایڈمرل کرمبیر سنگھ نے نیشنل وار میموریل پر خراج تحسین پیش کیا۔ دہلی میں کوہرے کے درمیان راج پتھ پر انڈو ٹبیٹن بارڈر پولیس نے ریپبلک ڈے پریڈ کے لیے پریکٹس شروع کر دی ہے اور آج صبح پریکٹس کرتے دیکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 16 جنوری کو ہندوستان کی کووڈ-19 ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ امکان ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ملک بھر سے بعض ہیلتھ ورکرز کے ساتھ رابطہ کریں گے جو پہلے دن خوراک حاصل کرنے والے ہیں۔ مودی امکان ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کی تقسیم پر نظر رکھنے کے لیے قائم شدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کوون کا بھی آغاز کریں گے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ اندازی مہم ہوگی۔ بھارتی کسان یونین کے قومی صدر بھوپندر سنگھ مان نے کہا کہ وہ نئے زرعی قوانین کے بارے میں مرکز اور کسان یونینوں کے درمیان تعطل کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے مقررہ 4 رکنی کمیٹی سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ مان نے یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا جب ان کی تنظیم کی پنجاب یونٹ نے ان سے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چین کے ساتھ 8 ماہ سے جاری سرحدی تنازع کے درمیان کہا کہ ہندوستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کے سپاہی ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچانے والے کسی بھی سپر پاور کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم ہر ایک کی سلامتی چاہتے ہیں، لیکن میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سپر پاور ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہمارے سپاہی اسے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن اور دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے، یہ ہمارے خون اور ہماری تہذیب میں ہے۔ اسلام قبول کرنے کے خواہاں ایک 32 سالہ شخص نے گجرات ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے بھروچ ضلع کے عہدیداروں کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی ہے کہ تبدیلی مذہب کا عمل تیز کیا جائے، کیونکہ وہ اس مقصد سے درخواست داخل کرنے کے بعد سے زیادہ سے 1 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ درخواست گزار جگنیش پٹیل کے وکیل MB سید نے کہا کہ بھروچ کے کلکٹر نے زیادہ سے 1 سال سے پینل کی درخواست روک رکھی ہے۔ حالانکہ فروری 2020 میں سب ڈویژنل مجسٹریٹ کی انکوائری رپورٹ میں یہ رائے دی گئی تھی کہ انہیں مذہب بدلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پٹیل نے 26 نومبر 2019 کو کلکٹر کو ایک درخواست داخل کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ان پر تبدیلی مذہب کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لالچ دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ وہ اسلام سے کافی متاثر ہیں اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پچھلے 6 برسوں سے کسی مسلمان کی طرح رہ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 29 جنوری کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا اور مرکزی بجٹ 1 فروری کو پیش کیا جائے گا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ایک اعلامیہ میں یہ بات بتائی، جس میں کہا گیا کہ سیشن 18 اپریل کو ختم ہوگا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کو مطالبات زر پر غور اور رپورٹ پیش کرنے کا موقع دینے کے لیے ایوانوں کو 15 فروری کو ملتوی کیا جائے گا اور ان کا 8 مارچ کو دوبارہ آغاز ہوگا۔ وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے پیدا عالمی صورتحال کی وجہ سے یوم جمہوریہ تقاریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے کوئی بیرونی لیڈر شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ زائدہ 5 دہوں میں یہ پہلا موقع ہے جب یوم جمہوریہ پریڈ میں کوئی بیرونی مہمان خصوصی نہیں ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے میڈیا بریفنگ کے دوران یہ بات بتائی۔ حال ہی میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ملک میں کورونا وائرس کی نئی شکل پھیلنے کی وجہ سے دورہ ہند منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہندوستان نے بورس جانسن کو یوم جمہوریہ تقاریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا تھا۔
आइंदा अप्रैल मई में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात चंद हफ्ते आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों के मद्देनजर किसी किस्म के तजादात से बचने और अप्रैल तक इस अमल को मुकम्मल कर लेने के लिए कमीशन असेंबली इंतखाबात को चंद हफ्ते आगे बढ़ाने पर गौर व खौस कर सकता है। जराये ने इशारा दिया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान फरवरी के औसत तक किया जा सकता है। इस साल अप्रैल मई में मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इन रियासतों में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी सबसे ज़्यादा होगी। निसाबी किताबों में इस्लाहात लाने के लिए मुनक़िदा इजलास में पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम को राइट विंग तंजीमों और माहिरीन तालीम की मिली जुली राय हासिल हुई है। इनमें से एक ने कहा कि वाजपेयी दौरे हुकूमत में निसाबी तालीम को ज़ाफ़रानी रंग देने पर बहस छिड़ गई थी। इन माहिरीन तालीम ने कहा कि मुग़ल तारीख़ को हिंदुस्तानी निसाब से यकसर निकाल दिया गया है। अब निसाब में वैदिक दौर के बेशुमार मज़ामीन शामिल किए गए हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास का एजेंडा ये था कि निसाब से गैर तारीख़ी हक़ाइक़ के हवालों को हटा दिया जाए और हमारे नेशनल हीरोज़ की तारीख़ को शामिल किया जाए। हिंदुस्तानी तारीख़ के तमाम दौर का मुनासिब और यकसा हवाला दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी तारीख़ में ख़वातीन के अजीम रोल को भी उजागर किया जाए। JS राजपूत और शंकर शरण ने इस कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत या BJP के दौर में निसाब से मुग़ल तारीख़ का सफाया किया जा रहा है। राजपूत और शरण ने कहा कि हिंदुस्तानी तारीख़ में मुग़ल शहंशाहों और हिंदू राजाओं का यकसा रोल रहा है। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। निसाब में जब तारीख़ का हवाला दिया जाता है तो मुग़ल दौर और हिंदू दौर को यकसा पेश किया जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदुस्तानी तारीख़ में सिर्फ दरोगोई से काम लेते हुए अंग्रेज़ों की 200 साल की हुक्मरानी का जिक्र किया गया है, जबकि इसमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुग़ल शहंशाहों की 1000 साल की तारीख़ का सफाया कर दिया गया है। मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर ज़ाकिर नायक और पाकिस्तानी निज़ाद दो मुबल्लिग़ीन के मुबैना तौर पर लव जिहाद केस में मुलविस होने की तहक़ीक़ात के लिए कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA की एक टीम बांग्लादेश पहुँच गई। ज़राए ने आज ये इत्तला दी। NIA के एक ज़रिए ने IANS को बताया कि मुबैना लव जिहाद केस में जो गुज़िश्ता साल अगस्त में दर्ज किया गया था, तफसीलात इकट्ठा करने के लिए NIA की टीम बांग्लादेश पहुंच गई है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि टीम एक बांग्लादेशी सियासतदान नफीस के फर्जन और एक हिंदुस्तानी खातून से पूछताछ के लिए बांग्लादेश गई है। NIA ने हाल ही में व्हाट्सएप के ज़रिए खातून से पूछगछ की थी। इस खातून का ताल्लुक चेन्नई में मुकीम एक ताजिर के ख़ानदान से है। NIA इस अमर की तहक़ीक़ करेगी कि आया खातून ने अपनी मर्ज़ी से शादी की या इसका लंदन से अगवा किया गया था, जहां वो आला तालीम के लिए मुकीम थी और बाद में बांग्लादेश मुंतकिल हो गई। ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी नफीस और इनके सियासतदान वालिद सरदार शखावत हुसैन से भी पूछताछ करेगी। NIA ने हाई प्रोफाइल लव जिहाद केस से मुतालिक एक FIR में ज़ाकिर नायक और 2 पाकिस्तानी निज़ाद सख्तगर मुबल्लिग़ीन के नामों को शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल से गोरखपुर तक समंदरी तैयारा खिदमत का आगाज़ का ऐलान किया है और बैनुल क़ौमी परवाज़ें कुशीनगर तक जाएंगी, जिस पर अमल बहुत जल्द शुरू होगा। गोरखपुर से मुल्क के तमाम बड़े शहरों तक 9 परवाज़ें चलाई जा रही है। बहुत जल्द बैनुल क़ौमी परवाज़ों का भी कुशीनगर से आगाज़ होगा। ये बात उन्होंने गोरखपुर में एक तकरीब के दौरान कही। अनाव हल्के के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश में BJP को कामयाब बनाने के लिए मदद करेंगे, जैसा कि उन्होंने बिहार में ज़ाफ़रानी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए मदद की थी। कांग्रेस ने साक्षी महाराज के इस बयान पर सख्त तनकीद की। मगरबी बंगाल में कांग्रेस के इंचार्ज जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल की अवाम ने BJP और MIM के दरमियान गठजोड़ को महसूस कर लिया है। अब वो आइंदा इस मैच फिक्सिंग की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने ईरान पर खित्ते में तबाही फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और ज़ोर दिया कि वो पड़ोसी मुल्कों की सलामती को गैर मुस्तहकम करने के लिए जंगजू तंजीमों की माली मदद के बजाय ईरानी अवाम के मफाद को तरजीह दें। उन्होंने मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब सरगई लावरोव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में सरमायाकारी के बड़े इम्कानात का तस्करा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में आइंदा 10 साल के दौरान $6 ट्रिलियन की सरमायाकारी के मौके हैं, जिसमें इसे $3 ट्रिलियन विजन 2030 के इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत नए मनसूबों में लगाए जाएंगे। सऊदी वली अहद ने इन ख्यालात का इज़हार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सरगर्मियों के तहत ऑनलाइन स्ट्रैटेजिक मुकालमे से खिताब करते हुए किया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत मुमलिकत की ऐसी तौनाइयों से इस्तेफादा करेगा जिससे अब तक फ़ायदा नहीं उठाया गया है।
कोरोना वायरस के खात्मे के लिए 16 जनवरी से मुल्क भर में जिस टीका अंदाजी का आगाज किया जा रहा है, तौक़्क़े है कि वो 1 साल या इससे ज़ायद अरसे तक जारी रहेगा। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के माहिरीन ने बताया कि टीका अंदाजी मुहिम पूरे साल या फिर इसके बाद भी जारी रह सकती है, ताकि हर शहरी को ये टीका दिया जा सके। टीकों की महदूद दस्तियाबी की वजह से महकमा सेहत के हुक्काम ने आइंदा चंद माह के दौरान ऐसे अफराद को टीका अंदाजी में तरजीह देने का फैसला किया है, जिन्होंने कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत की थी। तेलंगाना में टीका अंदाजी के लिए भी तरबियत याफ्ता मुलाजमीन का इंतखाब कर लिया गया है, जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमात पर अमलावरी के साथ टीका अंदाजी का भी वसीतर तजुर्बा हासिल है। जच्चा और बच्चे की बहबूद के प्रोग्रामों के लिए भी आशा वर्कर्स की खिदमत हासिल की जाती है। महकमा सेहत के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हफ्ते को टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज़ होगा, जिसके दौरान तरजीही तौर पर मुंतखबा मुलाजमीन को ये टीके दिए जाएंगे। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तहानात 2021 के अप्रैल में इनेकाद के इम्कानात हैं। प्रैक्टिकल इम्तहानात अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्तहानात के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से अनकरीब ऐलान किया जाएगा। बोर्ड अहदेदारों ने बताया कि 1 फरवरी से जूनियर कॉलेजेस की कुशादगी अमल में आ रही है। 2 माह क्लासेस के बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इम्तहानात का आगाज़ होगा, जो अप्रैल के दरमियानी माह तक जारी रहेंगे। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने संक्रांति के मौके पर नेकलिस रोड पर पतंगबाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम को बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि यह त्यौहार मुस्तक़बिल में मुल्क के तमाम शोबों में तब्दीली लाएगा। कोरोना बहरान से निमटने वैक्सीन दस्तयाब हो गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कई सरकारी दवाखानगी शोबे माली मसाइल से दो चार हैं। वो उम्मीद करते हैं कि संक्रांति से दोबारा खुशहाली लौट आएगी। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति त्यौहार में लोग पतंगबाजी करते देखे गए। राजभवन में भी संक्रांति त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गवर्नर टी सौंदराराजन ने राजभवन अमले के साथ जश्न में शिरकत की। शहर में आए तबाहकुन सैलाब के सैकड़ों मुतासरीन अब भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक इमदाद के मुंतजिर हैं। अक्टूबर में सैलाब ने शहर के कई इलाकों में तबाही मचाई थी। कई इलाके ज़ेर आब आ गए थे और हज़ारों अफराद बेघर हो गए थे। सैलाब के बाद हालांकि कुछ लोग घरों को वापस हो चुके थे, लेकिन इनके घर और सामान तबाह हो चुके थे। मतमूल और मिडिल क्लास तबके ने तो किसी तरह हालात को संभाल लिया, लेकिन गरीब अवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 10,000 रुपये की माली मदद का ऐलान किया था। इसके अलावा मुकम्मल मकान की तबाही पर 1 लाख रुपये और मामूली नुकसान पर 50,000 रुपये मदद का ऐलान किया था। GHMC इंतखाबात की वजह से 10,000 रुपये की तकसीम फौरी शुरू हो गई थी, ताहम अब तक घरों के नुकसानात पर इमदाद मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सर्वे हालांकि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है।